Exercise 24, question number 5. See the diagram. The diagram is a little different from what we had done in the previous sums. Yes, Kush. And here, the two angles which we have are overlapping. The two angles are overlapping here. This angle, the line BD, makes an angle 45 degree. The line BD makes an angle 45 degrees with the base BC. Okay. And the line AB, this line AB makes an angle 60 degrees with the base BC. Okay. And this distance here is given as 40 centimeter. Okay. We have to find the length of AD. We have to find this length, AD. Okay. Any suggestions how to do the sum? Anyone knows? Sir, the whole angle is given 60 degrees. So, sir, we can do 60 minus 15. So, we get that angle ABC. So, the smaller angle is 15 degree we can get. No. See, firstly, I'll repeat what I said in the previous class, that trigonometric ratios are applicable only in right angle triangle. Okay. So, if you think that you can solve this small triangle, this triangle, ye wala, ABD. If you think you can solve this small triangle, but this triangle is not a right angle triangle. Okay. So, you cannot solve this triangle. Okay. So we can use a smaller triangle, that is BCD, and we can take DC as X, and then using the formula we can take DC as X, this side. Yes, sir. Okay. Okay. Then? And then, so we can, using the formula, we can find it. Then we can find DC. What about AD? So I think once we get it, we can use the entire triangle, and then once we get DC, so DC, we can, whatever we get, that will keep, and AD we can name it as Y. So DC plus Y, that thing we can use wherever the formula, whatever is required. Correct. Little, I'll make a small change while solving, but more or less it is correct. Sir. Yes. Sir, we have to use the same formula twice over here, but for difference now. So because 60 degree and 45 degree is given for two triangles, and there is 40 centimeters. So we have to do the same thing but twice, and then we have to add the length. Subtract. Oh, sorry, subtract the lengths. Correct. So I'll explain once again. What we have to do in this sum is that first I'll take the smaller triangle BCD. ये छोटा वाला triangle, ऊपर के part को cover कर दो, ये नहीं चाहिए, ठीक है? We will take this smaller triangle. Okay, if you want to name this side DC as X or Y, you can do that, or you can keep it DC itself, up to you. So see, I'll take this smaller triangle where the angle is 45 degrees. Okay, ये 60 तो बड़े वाले triangle का है, तो 60 को भूल जाओ. Just focus on this 45. Okay, so I'll take in triangle BCD. This side, see, for this angle 45, this DC, ये जो छोटा side है DC, this that is perpendicular. ठीक है, DC perpendicular होगा. Okay, and ये जो है ये base होगा. Correct. So which formula connects perpendicular to base? Perpendicular to base is tan. Correct. So I'll use tan 45 degree equals perpendicular upon base. Okay. The value of tan 45 is 1. You need to learn the values now. Value of tan 45 is 1. So you have 1 equals, what is perpendicular? We don't know what is perpendicular. So let's name it
BC, ठीक है। आपको XY नेम करना है वो भी कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो BC upon the base is 40, so upon 40. Now this 40 will go here, this 40 will go here, and I will get 40 equals DC. तो DC मिल गया 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये मिल गया ना, अब इसको साइड में रख दो, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फोकस करो बड़े वाले ट्राइंगल पे, बिगर ट्राइंगल। ओके, नाउ इन दिस बिगर ट्राइंगल द एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल को भूल जाओ, भी ये छोटे वाले ट्राइंगल को ध्यान ही मत दो, इस लाइन BD को भी ध्यान मत दो, ठीक है, जस्ट लीव इट। तो जो बड़ा ट्राइंगल है, इन दिस बिगर ट्राइंगल आई हैव एंगल 60, ओके। एंगल के सामने वाली साइड है AC, ये बड़ी साइड क्या है, AC, दिस फुल साइड AC, ओके। एंड द बेस इज 40 अगेन फॉर द 60 डिग्री ट्राइंगल, ओके। सो मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा एंड मैं ये फुल AC फाइंड करूंगा, ये ऑपोजिट वाली साइड, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। तो ये पूरी साइड परपेंडिकुलर है, करेक्ट, AC। So then I'll take in triangle ABC. Okay, I'll again apply tan क्योंकि perpendicular upon base same ही आएगा, ठीक है। So tan 60 this time equals this perpendicular that is AC upon base that is BC. Okay. वैल्यूज पुट कर सकते, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, BC की जगह पे 40. So what is tan 60? Tan 60 is √3 AC upon 40. So this 40 will go here. You will get AC as 40 √3. BC मिला था 40. अब now I know the full side AC and I know the small side DC. तो इस पूरे AC में से अगर मैं DC को माइनस कर दूं तो मुझे AD मिल जाएगा, करेक्ट। सो मैं क्या करूंगा, AC minus DC. If I want to find AD, AD is AC minus DC. So AC क्या है 40 √3 minus DC क्या है 40. Now this calculation you can do it in different ways. You can first multiply 40 √3 और फिर उसमें से 40 माइनस करो, या 40 कॉमन ले लो फिर माइनस करो, anything will do. Yes, Josh. सर एक जगह हम लोग tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और दूसरी जगह cot, ऐसा चलता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है ना, आप साइन कोसेक टैन कॉट वो कभी भी कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सर दोनों में tan है तो बट tan ऐसे 45 बार और cot 60 ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे cot 60 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे cot 60 करोगे तो 40 अपॉन AC आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। Okay, so tell me the answer. What should be the answer? 24th, 5th sum. 29.28 centimeters. Value of √3 is 1.732. Two values you should definitely know. Value of √3 and √2 is 1.414. ये भी पता होना चाहिए, दोनों लिख दो चाहिए तो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे. You should know the values.
Okay. So let's continue. Next sum. Now in this sum, A, B, C, D, they have given one important information there that all four sides are equal. All four sides are equal means it is more than a parallelogram. It is a rhombus. Okay. All four sides equal किसमें होते हैं? स्क्वायर में भी होते हैं, बट स्क्वायर में आपको समझ जाता है कि फिगर स्लांट नहीं होता है. ठीक है, दिस इज अ लिटिल स्लांट, तो वो नहीं होगा. स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्रीज. सो अगर एंगल्स 90 नहीं है लेकिन फिर भी ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज rhombus. Okay. So I will have to write that all angles are equal, so it is a rhombus. मैं यहाँ पे लिखता हूँ all sides are equal, therefore ABCD is a rhombus. Now there is one important property of a rhombus. What is that property? That in a rhombus, diagonals meet at 90 degrees. Diagonals meet at 90 degrees. So you have to write that in rhombus, diagonals meet at 90 degrees. ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ rhombus, kite और स्क्वायर में होती है. दिस प्रॉपर्टी दैट diagonals meet at 90 degrees. Okay, so diagonals meet at 90 degrees means ये सब एंगल 90 डिग्री है, ऊपर भी वो एंगल्स भी 90 डिग्री है. All angles are 90 degrees. Now, what information is given in the question? They have told that AB is 60. ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है. And angle BAD, angle BAD मतलब ये पूरा एंगल, angle BAD is 60 degrees. This angle is given as 60 degrees. Okay. अब क्या करें, हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स. दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है, AC और BD. ठीक है. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन ओनली बी अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? DAB. दिस नो, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कौन से है पता है? ये जो छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस स्मॉल ट्रायंगल्स, ये जो छोटा ट्रायंगल है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, बिकॉज़ सी यू कैन सी 90 डिग्रीज हियर. सो आई यूज दिस ट्रायंगल बिकॉज़ मुझे इसकी वैल्यू पता है 60 सेंटीमीटर. ओके, बट दिस फुल एंगल इज 60 डिग्रीज. ठीक है, मेरे ट्रायंगल में तो सिर्फ इतना ही एंगल है. ओके, अगर ये पूरा एंगल 60 है तो इज देयर एनी प्रॉपर्टी दैट these both angles are equal? Yes. Diagonals of a rhombus are angle bisectors. We will write a statement. Diagonals of rhombus are angle bisectors. ओके, ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, इसको O नाम दे दो, O. नाउ डायगोनल्स ऑफ rhombus आर एंगल बाइसेक्टर्स. इसका मतलब क्या है? ये अगर पूरा 60 है तो ये 30-30 होगा दोनों. ठीक है, तो आई विल चेंज द डेटा हियर. ये 60 है तो ये होगा 30 डिग्रीज. ओके, लिख भी देते हैं इसको सो दैट ये याद रहेगा. क्या लिखेंगे? एंगल DAO, therefore right, therefore angle DAO equals angle OAB.
angle BAO, this angle, and angle OAB, these both angles are equal. ठीक है, इस लाइन के बाद आएगा ये स्टेटमेंट, इस लाइन के बाद ये स्टेटमेंट आया. Okay, therefore angle OAB is 30 degrees. Now what? अभी क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट पता चल गया ये ट्रायंगल के बारे में, एंगल मिल गया और ये साइड पता है. विच साइड इज दिस? सी 90 के ऑपोजिट साइड है ये, 90 के ऑपोजिट, सो दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज. करेक्ट. ये जो ट्रायंगल है छोटा ट्रायंगल. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB. ओके, ये ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल में क्या फाइंड करेंगे? मुझे फाइंड क्या करना है? अल्टीमेटली मुझे दोनों चीज फाइंड करनी है. आई हैव टू फाइंड BD आल्सो, आई हैव टू फाइंड AC आल्सो. ठीक है, तो जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. दिस हाफ एंड दिस हाफ इज सेम, दिस हाफ एंड दिस हाफ इज सेम. ओके, सो यूजिंग दिस ट्रायंगल अगर मैंने ये फाइंड कर लिया BO, तो उसको डबल कर दूंगा तो BD मिल जाएगा. एंड यूजिंग दिस सेम ट्रायंगल अगर मैंने AO फाइंड कर लिया, when I double AO, I will get AC. Okay, so using this triangle, find BO also and find AO also. Do it. कैसे कर सकते हैं? देखो ये एंगल है, ये एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड, तो ये होगा परपेंडिकुलर. ओके, ये है हाइपो 90 के सामने, तो दिस साइड AO will be बेस. ठीक है, हाइपो तो यूज करना ही पड़ेगा. सो पहले क्या करेंगे? पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ले लो, सो यू विल गेट BO. फर्स्ट टेक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो? इट इज साइन. सो आई टेक साइन 30 is perpendicular upon hypo. Perpendicular is BO and hypo is 60. What is sin 30? It is half. So you will get BO as 30. Okay, इसको square मत करो. This is not the final answer. BO is 30. Therefore, BD is 30 into 2, that is 60 centimeter. Any doubts here? Using the same triangle, अब मुझे बेस फाइंड करना है. ये बेस, so base upon hypo, base upon hypo. सर आपने T upon H is equal to 60 upon 60 लिखा है ना? ये B है, BO upon 60. BO, ये BO है ना? हाँ सर. Then I'll use cos 30, that is base upon hypo. The base is AO upon hypo is 60. Cos 30 is root 3 upon 2, that is AO upon 60. सर आपने वो 1/2 कैसा लिया? sin 30 के नीचे 1/2. Value of sin 30. हाँ सो अच्छा ओके. तो बस वो 1/2 कैसा है? Value of sin 30 is 1/2. Table से. अच्छा हाँ ओके ओके सर. यहाँ पे भी cos 30 is root 3 upon 2. The 60 will go here. 60 root 3 upon 2 is AO. 2 ones are 230. So you will get AO as 30 root 3. अगर ये AO 30 root 3 है तो पूरा AC क्या होगा? इसका डबल.
AC will be 30 root 3 into 2, that is 60 root 3. 60 root 3 means 60 into 1.732. That will give the final value of AC. (103.92). You should get 92. (103.92). No, diagonals are not equal in rhombus. Copied everyone? So I'll erase it because the next diagram is a little big. सर नेक्स्ट डायग्राम में ए सी डी भी ए बी सी डी ऐसे क्यों नहीं लिखा है सीक्वेंसली? हाँ, ये because ये quadrilateral नहीं है, इसलिए they did not keep it the sequence. Change कर दिया उन्होंने. नहीं करना चाहिए था actually. ओके, थोड़ा लेंदी सम है ये नेक्स्ट वाला, सो पेशेंट रहना. What do we have to find? We have to find AB. AB means I have to find this entire side AB. Okay. One more angle is given 60 degrees here. So, any inputs? How can we start the sum? AB find करना है पूरा. तीन चीजें करनी है यहाँ पे, ठीक है? Diagonal CE. सर पहले स्मॉल ट्रायंगल ले सकते हैं AFC और इसमें से AC ढूंढ सकते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रायंगल से CD और फिर सर मेरे को लगता है DE, तो फिर नेक्स्ट. सॉरी, आप म्यूट हो गए गलती से, अनम्यूट कर लो वापस. तो वो दूसरी साइड भी 90 डिग्री होगी तो 60 ढूंढ के वैसे भी कर सकते, मतलब तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल हैं. One thing is correct here that पहले ये छोटा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, you will find AC. Then I'll take this smaller triangle, I will find DB. ठीक है, कर सकता हूँ because मुझे एंगल पता है, मुझे एक साइड भी पता है, मैं दूसरी साइड ढूंढ सकता हूँ, ठीक है?
How will I find CD? So we have to draw a triangle. Triangle. How? तो FD एक diagonal draw कर सकते नहीं CE. CE हाँ That CE diagonal draw करेंगे. तो CE draw करने से क्या होगा? ठीक है, CE draw कर लिया अभी. यहाँ पे जो 60 है वो 60 ब्रेक हो जाएगा, बट वो कैसे ब्रेक होगा? इक्वल तो नहीं होगा, तो वी डोंट नो कि ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल कितना है. That will be a problem. Yes, others. Sir, मैं बोलूं? Unmute yourself. Sir, we can also draw a line FG, which is perpendicular to DE. Correct. That is correct. Yes, Aksh. अच्छा, Aksh only answered. See, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये जो डायगोनल बनेगा ये इस एंगल को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. ठीक है, अगर ये एंगल पता चल जाता तो वी कुड हैव टेकन दिस ट्रायंगल एंड सॉल्व्ड इट, बट ये नहीं पता चल रहा है, सो दिस विल नॉट वर्क. नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट फ्रॉम F I will draw a perpendicular. I will draw a perpendicular on DE and let's name it FG. ठीक है. Now, if this is 20, ये इतना 20 है. See, this is ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है. तो obviously ये एंगल भी 90 ही होगा, which will make this a rectangle. Okay. And first discussing the sum, then we can quickly solve it. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं. ये भी रेक्टेंगल होगा. ठीक है. अब ये 20 है तो ये भी छोटी साइड 20 होगी. 30 तो पूरा है, पूरा 30 है और इतना 20 है GD. सो ये जो है EG that will be 10. करेक्ट. और ये 10 मिला. और फिर यस जय, टेक दिस ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर का, and using that triangle find FG. Yes, Abhishek. तो नहीं समझा सर ये 10 वाला. ठीक है, let's start the sum. Right here, draw FG perpendicular to ED. Okay, and let's start with this triangle. पहले ये छोटा triangle solve करते हैं. ठीक है, this triangle. In triangle FAC. Okay, यहाँ पे tan 45 के opposite 20 है. This is perpendicular and this is base AC. Okay, AC is base. So perpendicular upon base, I'll use tan 45 is, this is perpendicular upon base, that is 20 upon this side AC. So tan 45 is 1 is 20 upon AC, that means AC is 20. ये हो गया इतना, AC मिल गया 20. ठीक है. Then I'll take this triangle EDB, ये वाला triangle. Okay, इसमें this full side ED, ये पूरा side 30 है. Okay, 60 के opposite, this full side is 30, and this is the base. BD is the base. So again, perpendicular upon base. Perpendicular upon base. So I'll write in triangle EDB. Again, I'll use tan. Tan 60 is perpendicular upon base. So ये perpendicular है ED. 30 upon base क्या है? BD. What is tan 60? Tan 60 is √3. So BD is 30 upon √3. √3. इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. BD is 30
So root 3 into root 3 will give me 3. 3 ones are 3 tens are. I will get 10 root 3. Or 10 root 3 is nothing but 17.32. अभी देर नाउ पे अटेंशन, ये समझ में आया इतना, ये 20 मिला और ये 17.32 मिला, ठीक है। नाउ आई विल टेक दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ऊपर का, ठीक है। ये पूरी साइड 30 है, ओके। देखो ये इतना 20 है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, इतना, करेक्ट। ये रेक्टेंगल है, ओके। सो ये 30 तो पूरा है और उसमें से ये 20 है, ओके। सो दिस विल बी 10, तो अभी ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, इसमें ये एंगल है 60, 60 के ऑपोजिट ये साइड है FG, सो दैट इज परपेंडिकुलर। ये एंगल है 90 डिग्री, 90 के सामने होता है हाइपो, बट हाइपो की जरूरत नहीं है। 60 के सामने परपेंडिकुलर, एंड दिस EG जो ये 10 सेंटीमीटर है ना, दिस इज बेस। I'll again use tan 60, perpendicular upon base. What is perpendicular? FG. What is base? 10. What is tan 60? Root 3. So FG will be 10 root 3. So again 17.32. अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर लो। You will get 54.64 centimeters. Don't forget to write the unit. 54 आएगा दी, 64 नहीं। Yes. सो CD तो हम लोग ने ढूंढा ही नहीं, FG ढूंढा ना, तो फिर AB पूरा कैसे मिला? हाँ हाँ, तो एक स्टेप यहाँ पे लिख दो, FG और CD सेम है ना, रेक्टेंगल। यहाँ पे एक स्टेप लिखना बाकी है, FG equals CD. So CD is 17.32. हाँ ये सही था, ये लिखना जरूरी था। Others also add this step. सर ट्रेपेजियम मतलब जिसमें कोई भी एंड्स नहीं होते ना खुले? Trapezium means जिसकी one pair of opposite side is parallel. Okay, I'm erasing this now. I hope you are drawing the diagrams also. डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो स्टेप्स है, कंस्ट्रक्शन है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं कर सकते, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। EG ये पूरा 30 था, ये पूरा 30 था और ये इतना 20 है, तो 30 minus 20, तो ये मिला 10। ओके, नेक्स्ट।
we have a trapezium. Trapezium means one pair of opposite side is parallel. One pair of opposite side is parallel. Okay. Also, they have told that AD, DC, BC तीनों 20 है. AD, DC और BC ये तीनों 20 है. मतलब तीनों इक्वल भी है. ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. All three sides are equal. AD, DC and BC. सर ये सब में जो DC है उसको ये वाला उसमें फॉर्मूला लग सकता है ना 1/2 into DC is equal to AB मिड पॉइंट का. मिड पॉइंट कहाँ है लेकिन सर लेकिन अगर लेकिन ये एकदम वो लग रहा है ना इक्वल लग रहा है तो फिर नहीं. हाँ बट अगर यहाँ पे एक लाइन होती बीच में और उसको ढूंढना होता तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं. यहाँ पे लाइन है ही नहीं ना, ये मिड पॉइंट्स ही नहीं है. अच्छा ठीक है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. ये AB ढूंढना है मुझे. ठीक है. एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC वो बाद में देखते हैं. पहले AB ढूंढते हैं. ठीक है. AB ढूंढने के लिए पहले लेट्स डिवाइड द फिगर एंड लेट्स मेक ट्रायंगल्स. यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ. ठीक है. और इसको कुछ नाम दे देते हैं E and F. I'll write a statement. Draw DE and CF perpendicular to AB. Then there is one important information, one important derivation we should make here is that ये जो AD है और ये जो BC है ये दोनों साइड्स इक्वल है. ओके. सो अगर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स इन द ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ओके. देखो ये पैरेलल साइड्स है और ये नॉन पैरेलल साइड्स है. तो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल होती है तो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. Okay, so I will write here that AD equals BC. Therefore, ABCD is a isosceles trapezium. Yes, Om. So what is an isosceles trapezium? आइसोसेलेस का मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल है. समझो ऐसा ट्रायंगल होता है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसके ये साइड्स इक्वल है. तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसके ये दो साइड्स इक्वल होते हैं और ये पैरेलल होता है. So then the angle will also be the same, na? Correct. Angle be 60 degrees. तो अभी अगर मुझे पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नीचे के एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं क्योंकि ये इक्वल साइड के सामने का but sir the angle is not important only because if we find the DE so it is DE is equal to CF and because it is that ना मतलब ये वो है ना इक्वल है तो ये हम लोग को मिल जाए तो फिर दूसरे साइड का ढूंढने का जरूरत ही नहीं है. ये FB इक्वल होगा. यस. तो FB वैसे भी हम उस ट्रायंगल का कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे नहीं बट और पाइथागोरस से भी कर सकते थे. दो तीन तरीके करने के. we'll do the shortest one. अच्छा तो ये मिल गया. ये So this figure same like the last one, like after making the diagonals now, but the same way होगा. Not same as the last one. In the last figure these two lines were not parallel. Okay. लाइन पैरेलल होने से बहुत चीजें इजी हो गई है. लाइन पैरेलल होने से ये जो लाइन अगर पैरेलल है which makes ये जो डिस्टेंस है ना DE और ये डिस्टेंस CF ये दोनों सेम है डिस्टेंस. I'll write that statement क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में का जो डिस्टेंस होता है that is same.
ओके, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। फर्स्ट पहले लिख देते हैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। ओके, सो angle A equals angle B, that is equal to 60 degrees. Okay. Then हेलो सर। yes सर, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी नहीं लिखेगा तो चले? हाँ हाँ, आप कर सकते हो, वैसे भी फाइंड करने के बाद ये लिख सकते हैं yes, कि yes. ए नहीं लिखेगा चलेगा ना? यस, ठीक है, ये हो गया। नाउ सी दिस, लेट्स सॉल्व दिस स्मॉल ट्राइंगल AED। ये ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। इस ट्राइंगल में आई हैव द एंगल एंड आई हैव दिस साइड। ये साइड हाइपोटेन्यूज है, देखो 90 के सामने वाली साइड है, 90 के सामने वाली साइड, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना है AE, क्योंकि AB चाहिए ना पूरा, तो उसके लिए AE चाहिए। ओके, और DE भी ढूंढ लेंगे, बिकॉज DE भी काम आने वाला है, दोनों ढूंढ लेंगे। तो इन दिस ट्राइंगल स्टार्ट सॉल्विंग, find AE also and find DE also. ये सामने परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो एक बार बेस फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपो लेके, और एक बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लेके परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बेस फाइंड करता हूँ, बेस अपॉन हाइपो। सो आई यूज cos 60 is base upon hypo, that is AE upon 20. Cos 60 is half, so you will get AE as 10. Then I will use sin 60, perpendicular upon hypo. What is perpendicular? TE. What is the hypo? 20. And what is sin 60? 8 sum, na? Sin 60 is √3 upon 2. So cross multiply, 20 √3 upon 2 is DE. So 2 1s are 2 10s are 10 √3. 10 √3 means DE is okay. Now see this 20, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, बट उसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली कुछ एग्जाम में क्वेश्चन में दिया नहीं है कि DC is equals to EF, क्योंकि ये EF तो हमने बनाया था। ओके, so we will write here that in quadrilateral DEFC, ये जो quadrilateral है DEFC, ओके, DC square or rectangle? What? It will be a rectangle, definitely, not a square. Square नहीं हो सकता. So sir, DC will also be 90 degree, no? Yes, तो चारों 90 होता है तो वो rectangle होता है. Square के लिए all sides should be equal. और all sides equal नहीं है, देखो ना, ये 20 है और ये DE जो है हमें कितना मिला है 17.32. दोनों अलग है ना ये दोनों sides. DC is parallel to EF and
एंगल DEF equals एंगल CFE equals 90 डिग्रीज। ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्रीज है, तो ये कोइंटीरियर एंगल बन जाते हैं। यस युग। Sir, can you please repeat why we found both AE and DE? I'll tell you. कर लो फाइंड, क्योंकि अभी तक वो सेकंड पार्ट का आंसर है, तो आई विल कम टू दैट। फाइंड कर लो DE, ठीक है। और इसमें और एक शॉर्ट हो सकता है एक्चुअली, BC पैरेलल टू DE एंड Sir, I have a doubt. यस Sir, if we know that all the angles are 90 degrees, so we can directly write that means it is a rectangle. So we don't have to find that this, and we can write DC is equal to EF because opposite sides are equal in a rectangle. Yes, that is what we will do. Angle CDE equals angle DEC 90 degrees. I'll write these and co-interior angles. ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, that ये दो लाइंस पैरेलल है ना, this line is parallel to this line. So अगर ये एंगल 90 है तो this angle will also be 90. Okay, so once सारे एंगल, तीन एंगल 90 मिलना मतलब चौथा भी 90 ही होता है, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीन एंगल 90 मिल गए, therefore DEFC is a rectangle. DEFC is a rectangle. और अगर वो रेक्टेंगल है तो DC equals EF. Therefore EF is 20. ओके, तो EF मिल गया 20। ठीक है, अब ये BF ढूंढना बाकी है। ये BF होगा वो भी सेम ही, जो AE है वही BF होगा, ठीक है, पर उसके लिए भी रीजन लिखना पड़ेगा। Right here, that triangle ADE is congruent to triangle BCF. प्रूफ के सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो that these triangles are congruent. So AE equals. So what is congruent? We have done triangles chapter, right? No, sir. No, sir. Okay, we haven't done triangles chapter. I'll change the statement. कोई और तरीके से करते हैं। DE equals CF. ये DE और ये CF भी सेम है, रेक्टेंगल। ओके, सो CF क्या होगा? CF will be equal to 10√3, मतलब 17.32। तो इन दिस ट्राइंगल यू कैन इजीली फाइंड, एक्चुअली इसकी जरूरत भी नहीं है 10√3 की, चलिए डायरेक्टली यहाँ से BF ढूंढ सकते हैं ना। क्या यूज करना पड़ेगा? दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपो। सो बेस और हाइपो से डायरेक्टली BF फाइंड करो। cos 60 equals base upon hypo. See, ये 60 है, ये 90 है, 90 के सामने होता है hypo, and this is base. So base is BF, hypo is 20, cos 60 is half. So you will get BF as 10. अब मिल गया तीनों। AE मिल गया था, कहाँ पे मिला था? 10। AE 10 मिला था, BF भी 10 मिल गया और EF 20 मिला। So AB will 40. Be 10 plus 20 plus 10, that is 40 centimeters. We have done the first part now. AB मिला है हमें, ठीक है।
एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ, थोड़ा कैंसिलेशन हुआ था वहां पे, इसके लिए पहले हमने ये ट्राइंगल सॉल्व किया एंड वी फाउंड AE. Then we took this quadrilateral and show that these two triangles are interior, these two angles are 90 degrees because of interior angles, so opposite sides are equal. So DC equals EF, तो ये मिला 20. Then I took this triangle and I used cos 60 base upon hypo and I got BF as 10. तो ये मिल गया. अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वहां वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस AB एंड दिस DC. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट द हाइट, दिस हाइट 10√3. ओके, इसीलिए हमने DE भी फाइंड किया था. ओके, सो द डिस्टेंस आई विल राइट हियर, distance between AB and DC is DE, which is equal to, डायरेक्टली लिख दो, हमने फाइंड कर लिया है 17.32. हाईलाइट करना मत भूलना आंसर्स को. आप चाहिए तो ये जो पार्ट था DE ढूंढने वाला, ये जो पार्ट था, इस पार्ट को बाद में भी कर सकते थे, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होता. Done? Yes, CF भी यूज कर सकते हैं, no problem. The ninth sum, just go through the ninth sum. I think you can do it for homework. बहुत ही simple sum है. You won't need my help here. बहुत ही simple question है. ओके, तो आई थिंक 9th सम आप लोग कर लोगे इजीली, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ. Yes sir. टेक इट एज होमवर्क. आई विल ड्रॉ द 10th सम. वैसे तो 10th भी बहुत इजी है, बट थोड़ा नया है तो कर लेते हैं. कैलकुलेशन काफी इजी है. Okay, so yes, anyone, how can we find? We have to find AB. कैसे कर सकते हैं, कुछ तो बोलो. हेलो सर. हेलो. हाँ सर, इसमें ना सर CB इज इक्वल टू DE लिख सकते हैं अपन. CB इक्वल टू DE. हाँ सर, तो फिर है ना, फिर हम लोग को मिल जाएगा कि वो 30 है, तो फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व. ओके ओके, समझ गए. रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल. हाँ सर, रेक्टेंगल करते हैं सर, फिर हम लोग को दो वैल्यूज मिल जाएगी तो सॉल्व कर सकते
करेक्ट करेक्ट। ई डिग्री होगा। कर सकते हैं, जिसको समझ गया है रेक्टेंगल से करना है, स्टार्ट सॉल्विंग। अदर्स सी ये 90 है, ठीक है, ये एंगल भी 90 है एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 ओनली बिकॉज़ ये बेस है ना। तो मतलब वो 30 से हम लोग दो सॉल्व कर सकते हैं ना, दो साइड सॉल्व कर सकते हैं। यस, सो इन quadrilateral DCBE all angles are 90 degrees, therefore it is a rectangle. अगर ये रेक्टेंगल है, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, ये रेक्टेंगल मिल गया, मींस BC equals DE. ठीक है, तो अगर BC 30 है तो DE भी 30 होगा। ओके, तो ये मिल गया 30, इसके ऊपर ही लिख दिया मैंने। ओके, अगर ये 30 है, DE अगर 30 है, तो मैं ये वाला ऊपर का ट्राइंगल लेके AE फाइंड कर सकता हूँ। ये ऊपर वाले ट्राइंगल से आई कैन फाइंड AE एंड ये नीचे वाले ट्राइंगल से 60 वाले ट्राइंगल से आई कैन फाइंड BE एंड फिर दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो एंड सेंड मी द आंसर। So 30. AE मिला 30। I don't know whether there are omissions in this chapter. सिलेबस में तो नहीं है, स्कूल से किया तो बात अलग है। कुछ भी डाउट है किसी को, समझ में नहीं आया मैंने कौन सा ट्राई किया? यस सर, व्हाट इज नॉट इन सिलेबस? यू आर टेलिंग समथिंग। नहीं, जो रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है दैट इज नोन टू ऑल। ओके, जैसे 22B जो स्कूल से ओमिट किया है दैट इज नॉट ओमिट फ्रॉम द बोर्ड्स, तो स्कूल ने शायद मन से किया है। ट्रिगो, देयर इज नथिंग ओमिटेड इन ट्रिगो फ्रॉम बोर्ड्स। तो पता नहीं ये चैप्टर में क्या कर सकते हैं। I don't think so. Yes, sir, we had also done that exercise. हाँ, so but ये चैप्टर में every year कुछ omit नहीं होता है, तो I don't think so omit होगा कुछ। Yes, what is the final answer? So 81.96. 81.96. Yes, sir. 96 51.96 मिल रहा है ये, और दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को तो AB मिलेगा, AE प्लस BE। All of you got your marks? Just send me the picture of your mark sheet on WhatsApp. Sir, I sent already. Yes. जिनको भी मिल गया है या कल मिलने वाला है या कुछ जो भी है, as soon as you get it, just send me. Next sum. एक और सम कर लेते हैं लास्ट।
डुएबल सम है, आप ट्राई भी कर सकते हो, जिनको अगर समझ में आ जाएगा सम, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। एक बार concept, if you have understood the concept once ना, even if they change the sum in different ways, you are able to do it. समझ लो अच्छे से। Okay, so here in this sum they have given that BC is 2 centimeter. ये जो BC है ये 2 centimeter है. Okay, this angle is 90 degrees. These two lines are parallel. So अगर ये lines parallel है, if these lines are parallel, that means ये lines parallel है, ठीक है, angle 90 degrees है. So this figure ABCD, इसको वापस rectangle proof करना है. Okay, you can write directly. पहले एक लिख देते हैं यहाँ पे, this is 90. Angle ADC equals angle DAB equals 90 degrees. Interior angles now अगर ये 90 degrees है, so BC will be equal to AD. So ये 2 है, तो this will also be 2 centimeter. AD. अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है? I have to find AB. Okay, AB फाइंड करना मतलब DC फाइंड करना, because DC and AB are same. तो DC फाइंड करना है, and I have to find AC. ठीक है, ये AC फाइंड करना है, and I have to find AE. ये सब कुछ फाइंड हो सकता है इजीली. वन बाय वन करते हैं. पहले ये DC फाइंड करते हैं इन दिस ट्रायंगल. सो 45 के सामने दिस इज परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस. सो आई यूज tan 45. दैट इज 1 equals 2 upon DC. So DC is 2 centimeter. Therefore AB is 2 centimeter. Then in the same triangle I have to find AC also. AC is hypo. So सामने ये perpendicular और ये hypo. So I use sin 45. सी ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और हाइपो ढूंढना है. आप चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हो. हाँ, यहाँ पे अगर 2 मिला है, ये भी 2 है, तो 2 से पाइथागोरस भी कर सकते हो, बट बेटर है ये शॉर्ट में हो जाता है ऐसा रेशियो से. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दैट इज 2 अपॉन AC, एंड sin 45 is 1 upon √2. So AC is 2 √2. Put the value of √2 here.
सर आपको एडी क्या मिला? ये रहा। और सर मतलब एडी 2 है ना? जी हाँ। और सर ए बी, आपने ए बी भी 2 लिखा है उधर। कहाँ लिखा है? सर tan 45 के उधर, therefore AB is equal to। तो ये तो मैंने ढूंढा है ना यहाँ पे, DC2 मिला। हाँ DC सर, तो हाँ तो DC और AB सेम है। तो सर ये स्क्वायर स्क्वायर ना, रेक्टेंगल थोड़ी है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल। अच्छा, आपको हो गया कि वो स्क्वायर है, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा, ठीक है। अब ये मिल गया, AC भी मिल गया यहाँ पे। अब मुझे ढूंढना है AE, तो मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ADE। 60 के सामने दिस इज परपेंडिकुलर, और मुझे ढूंढना है AE, दैट इज हाइपो। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब आई यूज साइन। साइन 60 2 upon AE. Sin 60 is √3 upon 2. So AE is 4 upon √3. फोर अपॉन √3 रैशनलाइज करना पड़ेगा। 4√3 अपॉन 3 हो जाएगा रैशनलाइज करेंगे तो। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। 4 into 1.732 upon 3. You will get AE. Do it. So 2.31. 2.31. Yes, correct. Centimeters. That's it for today. In the next class, we'll try to complete the chapter. I guess होगा तो नहीं, काफी sums बाकी है. Let's see. That's it for today. Thank you. Goodbye. Any doubts you can ask. Bye, sir. Bye bye.